بیار شاہی مہمان خانے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ آج ہی شہنشاہ ہند عماد سلطان کی دعوت پہ یہاں پہنچا تھا، لیکن اس دفعہ عماد نے فوری ملنے کی بجائے امرو کو کچھ دن بعد ملنے کا وقت دے کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ عماد سلطان امرو کا ایک عقیدت مند تھا۔ امرو نے کئی مواقع پہ سلطان کی مدد بھی کی تھی، لیکن اس دفعہ کہانی کچھ اور تھی۔ اسی سوچ میں گم امرو کو اچانک دروازے پہ دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ میں ستارہ بیگم، ملکہ عالیہ کی کنیز خاص، شرف ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ آ جاؤ۔ شکریہ۔ بولو کنیز خاص، کیسے آنا ہوا؟ کنیز ملکہ عالیہ کا خصوصی پیغام لے کر حاضر ہوئی ہے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ حضور، ملکہ عالیہ شہنشاہ ہند عماد سلطان کے بارے میں بہت پریشان ہے اور اسی لیے آپ کو پیغام دے کر بلایا گیا ہے تاکہ آپ سے مدد کی درخواست کی جائے۔ کیا ہوا شہنشاہ کو؟ انہوں نے تو خود مجھے ملاقات کی دعوت بھیجی ہے۔ حضور، یہ ملاقات کی دعوت تو ملکہ عالیہ نے بھجوائی تھی، ورنہ شہنشاہ ہند کی تو حالت ایسی نہیں کہ وہ کسی سے مل سکیں۔ اوہ، کیا مطلب؟ برائے مہربانی مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ دراصل یہ سارے مسائل کی جڑ شاہی جادوگر ہے۔ شاہی جادوگر؟ جی ہاں، کچھ عرصہ پہلے ایک جادوگر سلطان سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کسی طرح سلطان کو مروب کر لیا اور سلطان نے اسے شاہی جادوگر کا رتبہ دے کر اپنے دربار میں جگہ دے دی۔ آہستہ آہستہ شاہی جادوگر نے سلطان کو پوری طرح سے اپنے بس میں کر لیا اور اب حالت یہ ہے کہ سلطان کوئی کام بھی شاہی جادوگر سے پوچھے بغیر نہیں کرتے اور شاہی جادوگر جو بھی کہہ دیتا ہے ویسا ہی سلطان حکم جاری کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان کی بھی پرواہ نہیں۔ شاہی جادوگر نے سلطان کو بتایا ہے کہ ان کے محل میں ایک شاہی خزانہ چھپا ہوا ہے جس کو نکالنے کے لیے ایک خاص عمل کرنا ہے اور اس عمل کے لیے شہزادی ماروخ کی ضرورت ہے۔ سلطان نے بلا چوں چرا اپنی بیٹی شہزادی ماروخ کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ ملکہ عالیہ نے سلطان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس عمل میں شہزادی کی جان بھی جا سکتی ہے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شاہی جادوگر روزانہ رات بھر شہزادی ماروخ پر کوئی خاص عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے شہزادی مسلسل بے ہوش رہتی ہے اور ملکہ کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ شہزادی کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ اسی لیے انہوں نے آپ کو سلطان کی طرف سے ملاقات کی دعوت دے کر بلا لیا تاکہ ان جادوئی معاملات میں آپ سے مدد کی درخواست کی جا سکے۔ اچھا، تو یہ معاملہ ہے۔ تم میری طرف سے ملکہ عالیہ کو یہ پیغام دے دو کہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ اب امرو ان کی مدد کے لیے آ چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سنو، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس وقت شہزادی ماروخ کہاں ہے اور شاہی جادوگر اس پر عمل کہاں پر کرتا ہے؟ کیوں نہیں، شہزادی محل کے ایک کمرے میں بے ہوش ہے اور شاہی جادوگر اسی کمرے میں اس پر رات بھر عمل کرتا ہے۔ کیا تم مجھے وہ کمرہ دکھا سکتی ہو؟ جی ہاں، آئیے میرے ساتھ۔ کنیز امرو کو وہ کمرہ دکھاتی ہے جہاں سحر زدہ شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ وہاں سے واپسی پہ امرو کا سامنا سلطان سے ہوتا ہے۔
लेकिन सुल्तान उमरू को देखा अनदेखा किए अपने रास्ते चल देता है। उमरू हैरान खड़ा सोचने लगता है कि सुल्तान ने उसे क्यों न पहचाना। ऐ बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि यहाँ सुल्तान के साथ क्या मामला है? उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना? ख्वाजा उमरो यार को बताया जाता है कि हमाद सुल्तान सहरज़दा है। वो बस उसी को पहचानता है जिसकी उसका साहिर इजाज़त देता है। इसका साहिर कौन है? एक बंगाली जादूगर जिसने अपने आप को शाही जादूगर के तौर पर मुतारुफ करवाया हुआ है। उसने हमाद सुल्तान को अपने शहर में जकड़ रखा है। अब सुल्तान वही कुछ करता है जिसका हुक्म शाही जादूगर देता है। और ये शहजादी वाला मामला क्या है? शाही जादूगर इस पर कौन सा अमल कर रहा है? ख्वाजा उमरो यार को बताया जाता है कि शाही जादूगर दरअसल सामरी जादूगर का चेला है। उसके आने का असल मकसद तो सुल्तान को अपने बस में ही करना था, ताकि सामरी जादूगर जैसे चाहे सुल्तान के जरिए इस मुल्क पर हुकूमत करे। मगर उसने अपने जादू से पता लगाया कि हमाद सुल्तान का एक आबाई खजाना यहाँ महल में कहीं पर छुपाया गया है और उसकी कुंजी खुद सुल्तान की बेटी शहजादी मारूफ की रूह है। सिर्फ वही उसे तलाश कर सकती है। शाही जादूगर ने शहजादी को बेहोश करके उसकी रूह पर अमल करना शुरू किया हुआ है ताकि वो इस खजाने का पता चला सके, मगर ताहाल वो इसमें कामयाब नहीं हो सका है। शाही जादूगर पर कैसे काबू हासिल किया जा सकता है? शाही जादूगर दरअसल एक असीम साहिर है। जो कोई इससे बात करता है वो इसके शहर में गिरफ्तार हो जाता है। इसके शहर से बचा जा सकता है क्योंकि इसकी सहाराना ताकत इसकी आंखों में मौजूद है। अगर कोई इंसान इसकी आंखों में ना देखे तो शाही जादूगर उस पर सहर नहीं कर सकेगा। ठीक है, बाकी मैं खुद देख लूंगा। उमरू अय्यार सुलेमानी चोला पहन के आम आंख से ओझल हो जाता है और शहजादी के कमरे में पहुंच के एक कोने में जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है कि तभी बंगाली जादूगर कनीज़े खास के साथ कमरे में दाखिल होता है और शहजादी पे अपना जादुई अमल करने लगता है। तू ये किन कामों में पड़ गया? अरे सामरी आका। हाँ, मैं सामरी जादूगर। आका, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक शहंशाह को अपने बस में कर लिया है। अब चूंकि आपने कोई और हुक्म नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सुल्तान का आबाई खजाना हासिल कर लूं तो यकीनन आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इस काम में इतनी देर क्यों लग रही है? आका, मैंने अपने इल्म से मालूम किया है कि इस ख़जाने को सिर्फ शहज़ादी मारूफ ही हासिल कर सकती है, इसलिए मैंने उसे हासिल करके उसकी रूह को अपने बस में कर लिया है। मगर शहज़ादी की रूह बहुत ज़िद्दी है और किसी भी तरह से मेरा काम करने पर रज़ामंद नहीं हो रही। तुम ऐसा करो, शहजादी की रूह को हासिल करके उसे धमकी दो कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम उसके बाप यानी हमाद सुल्तान को कत्ल कर दोगे। फिर देखो वो तुम्हारी बात कैसे मानेगी। ओह, ये तो बहुत ज़बरदस्त ख्याल है। मेरे जहन में ये क्यों नहीं आया। यकीनन सामरी जादूगर अजीम है और वहाँ तक सोचता है कि जो कोई आम जादूगर सोच भी नहीं सकता। बस अब जल्दी से इस काम से फारिग हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ और काम भी करना है। देख, मैं तुझे कहता हूँ मुझे खजाना ला दे, वरना अच्छा नहीं होगा।
तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने बुजुर्गों का खजाना नहीं दूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे बाप अमाद सुल्तान को कत्ल कर देता हूँ। अगर ख़जाना मुझे ना मिला तो मैं उसको भी नहीं लेने दूंगा। ठहरो, ऐसा मत करो। मैं तो ऐसा ही करूँगा। अगर तुम अपने बाप को ज़िंदा देखना चाहती हो तो फ़ौरन मुझे वो ख़जाना ला कर दो। अच्छा, मैं ढूंढ लाती हूँ। तुम बहुत ही जालिम इंसान हो। मैं इस खजाने की खातिर अपने बाप को नहीं मरने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ और खजाने को ढूंढती हूँ। शहजादी की रूह के जाते ही बंगाली जादूगर उसके खजाना लाने का इंतजार करने लगता है। वहीं कोने में खड़ा उमरू अय्यार भी तमाम हालात का जायजा ले रहा होता है कि तभी तरकीब ज़हन में आते ही वो अपनी आस्तीन से एक बेहोशी वाली दवाई निकालता है और उसे जादूगर के पानी में मिला देता है और वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। ये लो खजाना और हमारी जान छोड़ दो। बहुत खूब, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे जिस्म को उसी वक्त आज़ाद करूँगा जब तुम मुझसे शादी करने पर आमादा होगी, वरना आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ मोहलत देता हूँ। तुम सोच लो, तब तक मैं ज़रा इस खजाने को ठिकाने लगा लूँ। उमरू अय्यार बंगाली जादूगर को अपने मकासद में कामयाब होता देख फिर से एक तरकीब की सोच में गुम हो जाता है और देखता है कि जादूगर ने अभी तक दवाई वाला पानी भी नहीं पिया। उमरू अय्यार जल्दी से खजाने के पास पहुंच के उसे अपने सुलेमानी चोले में छुपाने लगता है, जो कि बज़ाहिर नजर आता है कि खजाना गायब हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? जिसे देख बंगाली जादूगर परेशान हो जाता है। ए बंगाली जादूगर, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने खुदा की मखलूक को बहुत तंग किया है। तुम कौन हो? सामने आओ। उमरू अय्यार सारा खजाना चोले में छुपा के गायब कर देता है और बंगाली जादूगर ये देख परेशानी के आलम में वो पानी का गिलास पी लेता है। जिसके बाद बंगाली जादूगर बेहोश होके गिर जाता है और फिर उमरू अय्यार जल्दी से बेहोश हुए जादूगर का खात्मा कर देता है। मैं बंगाली जादूगर दुनिया का एक अजीम साहर था। उमरू अय्यार ने मुझे धोखे से बेहोश करके मार दिया। उमरू अय्यार, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुमने न सिर्फ हमारी शहजादी की जान बचाई, बल्कि हमें भी इस बंगाली साहिर से आज़ाद कराया। हम इस गुनाह कदर खिदमत पर तुम्हें इनाम देने का ऐलान करते हैं। सुल्तान, मैं क्या और मेरी औकात क्या, फिर भी अगर आप इस खाकसार को किसी काबिल समझते हैं तो ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई कि हमारे अबाए खजाने को कौन ले गया। जहाँ तक शहजादी को याद पड़ता है, उसने ख्वाब की इसी हालत में उसे ढूंढकर शाही जादूगर को दिया, मगर फिर वो हमें कहीं नजर नहीं आया। आखिर वो कहाँ गायब हो गया? सुल्तान, मैंने इस बात पर गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यकीनन सामरी जादूगर ने किसी तरह से वो खजाना अपने कब्जे में ले लिया होगा, वरना अगर शाही जादूगर के पास होता तो हमें जरूर नजर आता। शायद तुम ठीक कहते हो।